Hello students, welcome back to Learn from Home classes with Deepak Chaubey. So today we will continue class 9 physics and chapter motion. So in last class of class 9 physics we have discussed about the velocity time graph, right? We have seen that from velocity time graph we can calculate the acceleration, we can calculate the total displacement or total distance covered by a moving body. Now in today's class we are going to discuss the graphical verification of equations of motion. Equations of motion. This is our new topic, that how can we verify equations of motion by graphical method. In previous classes we have seen that we can verify equations of motion by algebraic method. Today graphical method. So I think we are all familiar with graph already. So what to do for verification? You need to draw a velocity time graph. Look here, suppose let an object moving with a velocity u change to velocity v in time t in a straight line. ओके, मान लेते हैं कि एक बॉडी है जो u वेलोसिटी चल रहा था, वो वेलोसिटी अपना चेंज कर लिया v कितने टाइम में, t टाइम में, एक स्ट्रेट लाइन में. So you need to draw a velocity time graph. So draw vt graph by using above in data. Look here. This is x-axis and this is y-axis. Time on x-axis and velocity on y-axis. Okay, so here a body starts moving with initial velocity u. Suppose this is 0, this is u, and this is v. This is u, this is v. A body starts with this velocity u, and after time t, its velocity become v. This is, suppose this is point A and this is point B. Look here, body starts with u and after time t its velocity becomes v. Now draw perpendicular which is parallel to time axis. You can draw इस पॉइंट का नाम दे देते हैं C,
ये पॉइंट मेरा डी हो जाएगा। लुक हियर, सो वी हैव ड्रॉन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT graph. This is our VT graph. So in order to verify this equation of motion, so look here, from graph A equal to acceleration equal to slope of VT graph. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन, VT ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो उस ग्राफ का स्लोप फाइंड करके, राइट। तो मेरा ग्राफ तो यही बना हुआ है AB, तो इसका मतलब क्या हो गया, A इक्वल टू स्लोप VT ग्राफ, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज ऑन Y एक्सिस दैट इज BC। ये मेरा Y एक्सिस पे चेंज है, जिसको हम लोग Y एक्सिस पे देखेंगे वर्टिकल लाइन, एंड Y चेंज ऑन X एक्सिस, मतलब ये AC जो इस X एक्सिस पे देखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BC बाई AC, और A इक्वल टू BC, तो BC कितना चेंज है, B कहां पे है, V, और C कहां पे है, U, तो ये हो जाएगा V माइनस U। ध्यान देने वाली बात है, वेरी बहुत आसान से, B यहां पे यानी जीरो से यहां V, और यहां से यहां U है, तो बीच में कितना बचेगा, V माइनस U, और AC यहां से यहां क्या है, T है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो V माइनस U इक्वल टू 18, therefore V equal to U plus 80, and this is equation first verified। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग का क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपको एक VT ग्राफ बनाना है इस डेटा को लेकर, और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। बाय फाइंडिंग द एक्सेलरेशन we can find out the first equation, we can verify first equation. And as how can we find out acceleration, by finding the slope of the graph. Okay, so this is our first equation. Let's move to the next one, and number 2। तो ये जो है हर एक इक्वेशन, कोई एक ही इक्वेशन एग्जाम में अगर आएगा, तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये और ये ग्राफ, ये तीनों इक्वेशन के लिए हम लोग को फिक्स्ड रहेगा। हम लोग यहां से चेंज करेंगे। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो लुक हियर, फ्रॉम ग्राफ डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस कवर इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। लास्ट टाइम अंडर विच ग्राफ, VT ग्राफ, VT ग्राफ। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो एरिया ग्राफ जो बना है और टाइम एक्सिस के बीच में है, वही क्या कहलाएगा, उसका डिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर क्या हो गया, ग्राफ। डिस्टेंस का सिंबल यहाँ S दे देंगे। एरिया अंडर ग्राफ, देखते हैं यहाँ पे कौन सा एरिया है। ये एक तरह का क्या है, ट्रेपीजियम है। अगर इसको हम लोग ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल, अगर इस पूरे एरिया को निकालना है, तो हम लोग एरिया फर्स्ट ये और एरिया सेकंड, इन दोनों को निकालकर अगर ऐड कर दें, तो ये पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। या डायरेक्टली आप एरिया ऑफ क्या कर सकते हो, ट्रेपीजियम कर सकते हो। जैसे आपको जैसे सुविधा वो कर सकते हैं। दो काम कर सकते हैं, या तो तोड़ तोड़ के ऐड कर देंगे या डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो सपोज एरिया अंडर ग्राफ हम लोग अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, तो ये हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, OACD, एंड प्लस एरिया ऑफ this triangle ACB, okay। S equal to एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ,
और इट मींस हम लोग लिख सकते हैं यहां पे OA इंटू OD, OA इंटू OD, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरा क्या है AC और हाइट मेरा क्या है BC। अब आते हैं यहां पे S इक्वल टू OA, OA कितना यहां से यहां O से U इंटू OD, O से लेकर D तक क्या है T है तो UT हो गया, प्लस हाफ इंटू AC, A से लेकर C तक, यानी ये तो AC जो है इसके पैरेलल है, यानी इसको हम लोग इस पे देखेंगे x एक्सिस पे, तो AC किसके इक्वल है OD के, यानी ये भी T होगा, तो AC भी T हो गया, और इनटू BC, BC यानी B भी है और C कहां है U, यानी वर्टिकल लाइन को y एक्सिस पे, तो BC कितना हो जाएगा V माइनस U। नाउ S इक्वल टू, तो U इंटू T, UT प्लस हाफ इंटू इस T को T रहने देते हैं और इंटू V इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, V का मतलब क्या होता है U प्लस AT और माइनस यहां पे क्या हो जाएगा U फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये U और ये U क्या हो गया कैंसल हो गया, तो देयरफॉर S इक्वल टू UT तो यहां है ही और प्लस यहां क्या बचा है AT, AT इंटू AT क्या हो गया AT स्क्वायर और यहां हाफ है तो हाफ AT स्क्वायर, और ये हम लोग का इक्वेशन 2 वेरीफाइड। तो बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग कर सकते थे, और भी एक इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ओके, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे तब भी एक वेरीफाई हो जाएगा, और अगर तोड़ तोड़ के निकालेंगे तब भी एक वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड इक्वेशन को क्या कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। थर्ड इक्वेशन को हम लोग इसी तरीके से करेंगे, देखो यहां पर सेम ही है, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर BT ग्राफ, मींस S इक्वल टू, अब इस बार ट्रेपीजियम ले लेते हैं हम लोग, चलो एरिया ऑफ क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD, OABD राइट, और S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड क्या है यहां से यहां OA और DB है, तो लिख सकते हैं OA प्लस DB, ये हम लोग का पैरेलल साइड है, यहां देखो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, दिस वन, दिस इज पैरेलल साइड और ये क्या है नॉन पैरेलल साइड, तो OA और DB ये पैरेलल साइड हो गए, और इनटू हाइट, हाइट मेरा क्या हो गया ये इनके बीच का हाइट यानी AC, ओके, S इक्वल टू हाफ इंटू OA, O से A क्या है U है, और DB कितना है यहां से यहां D से B यानी 0 से B, यानी यहां पे क्या हो गया V हो गया, एंड इनटू AC यहां से यहां है, इसको हम लोग T लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, AC हॉरिजॉन्टल लाइन यानी O से D ये दोनों इक्वल है ये और ये, तो T हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, लुक हियर S इक्वल टू हाफ इंटू U प्लस V को V प्लस U भी लिख सकते हैं हम लोग, U प्लस V करो या V प्लस U, प्लस में हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, इनटू T के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं V माइनस U बाई A। याद करना आप लोग को मैंने बताया था लास्ट टाइम कि A इक्वल टू होता है V माइनस U बाई T, अगर ये क्रॉस मल्ट कर दें चेंज कर दें तो T इक्वल टू हो जाएगा V माइनस U बाई A, बस उसके वैल्यू को यहाँ क्या कर देना है पुट कर देना है,
Now s equal to v plus u into v minus u, क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और बाई 2 इंटू a 2a। अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम लोग को मिलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a और इस माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। इक्वेशन थर्ड verified. So very easily we have verified all three equations of motion by this graphical method. Okay, only two formula we have to use. By finding the slope of graph we have verified equation 1, and by finding the area under graph we have verified equation 2 and equation 3. That is number 2 s equal to ut plus half at square, and number 3 v square equal to u square plus 2as. Okay, so students, you can verify by this method easily in your exam. Questions come like this, that we verify this equation, any equation by graphical method. Graphical method is more important. Now after this we have only one topic left, and that is uniform circular motion, and that we will discuss in next class. So students, if you have any problem with this verification, you can ask me in the inbox. And one thing more, I will make my next video on numerical. Okay, numericals, so many numericals we will see there, how to solve numericals graphically or algebraically. Okay, so that's it for today. Thank you.